پرچموں سے قمقموں سے گھر مغل سج گئے، عاشقوں کی عید آئی، عاشقوں کی عید آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ایک عاشق رسول علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بہت ہی پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے، وہ کہنا مناسب سمجھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہزارہ کروڑہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات پر نظر ڈالے تو جتنی نعمتوں سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا ہے اس کا اندازہ ہو جائے۔ یہ آنکھ جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہاتھ اور پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ دماغ، یہ دل، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے۔ چند نعمتیں میں نے شمار کی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو ہمارے لیے دنیا بے معنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک قدم اور آگے چلو، یہ ہوا نعمت ہے، یہ پانی نعمت ہے، یہ اناج نعمت ہے، یہ زمین نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، چاند نعمت ہے، سورج نعمت ہے، دریا نعمت ہے، پہاڑ نعمت ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو اس انسان کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں جو خدا کو نہیں مانتا۔ ہر انسان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں، کچھ انسانوں کے لیے وہ نعمت ہے۔ وہ کون سی؟ نماز نعمت ہے، روزہ نعمت ہے، حج نعمت ہے، زکوٰۃ نعمت ہے، جمعہ نعمت ہے، شب برات نعمت ہے، شب قدر نعمت ہے، شب معراج نعمت ہے، قرآن نعمت ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن کس کے لیے نعمتیں ہیں؟ جس کے سینے میں ایمان ہو۔ ایمان جس کے سینے میں ہو، یعنی جو صاحب ایمان ہے، اس کے لیے نماز نعمت ہے، روزہ نعمت ہے، حج نعمت ہے، زکوٰۃ نعمت ہے، شب قدر نعمت ہے، شب برات نعمت ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نعمت ہے جس کے سینے میں ایمان ہو۔ جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب تک کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت کا نام ایمان ہے، لیکن ایمان سے بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نعمت حاصل نہ ہوتی تو ایمان بھی نہیں ملتا۔ تو اس نعمت کا نام کیا ہے؟ اس نعمت کا نام، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نعمت کا نام ہے نبی الانبیاء، سردار الانبیاء، امام الانبیاء۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، انہی کو تو کہتے ہیں احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ۔ وہ عظیم نعمت ہے جو اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو ہمیں خود ایمان نہ ملتا، آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قرآن نہ ملتا، آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رمضان نہ ملتا، نماز نہ ملتی، روزہ نہ ملتا، حج نہ ملتا۔ قرض کے ساری نعمتیں صدقہ ہے عید میلاد مصطفیٰ کا۔ عید میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے دنیا کی ساری نعمتیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
तो सारी कायनात को पैदा ना फरमाता। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हदीस कुदसी में, ऐ मोहम्मद अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता, यानी तुमको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, तो सारी कायनात को पैदा ना फरमाता। तो पता चला ये ज़मीन सदक़े मीलाद मुस्तफ़ा है, ये आसमान सदक़े मीलाद मुस्तफ़ा है, ये चाँदो सूरज सदक़े मीलाद मुस्तफ़ा है, सितारों की कहकशा सदक़े मीलाद मुस्तफ़ा है, ये सारी कायनात जो है सदक़े ईद मीलाद मुस्तफ़ा है। इसीलिए मैं उन मुनकरों से जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने से इनकार करते हैं, उनसे कहता हूँ अगर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को तुम शिर्क बिदअत कहकर इनकार करते हो, तो मीलाद वाली ज़मीन के नीचे से निकल जाओ, आसमान के नीचे से निकल जाओ। मीलाद वाले सूरज की रोशनी लेना बंद कर दो, मीलाद वाले चांद की रोशनी लेना बंद कर दो, मीलाद के सदक़े में जो दरिया अल्लाह ने बनाया उनका पानी पीना बंद कर दो। करके इन सारी नेमतों से तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, सारी नेमतों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सारी कायनात है और सारी कायनात में जितनी नेमतें हैं ये सब सदक़े ईद मीलाद मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा दुनिया में ना आते तो ना ईमान होता, ना कुरान होता, ना रमज़ान, कुछ नहीं होता। सारी चीजें मिली हैं तो ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। लेकिन सितमदरी भी ये है कि आज मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल आता है, तो आज उम्मत इस मुकाम पर पहुंच गई है कि मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाए क्या ना मनाए, नए कपड़े पहने क्या ना पहने, अपने घरों को, अपने बाजारों को, अपनी दुकानों को, अपने मकानों को, अपनी मसाजिद को सजाएं या ना सजाएं, सजाना जायज़ है या नाजायज़ है, शिर्क है या बिदअत है, इस मुकाम पर उम्मत मुस्लिमा पहुंच गई है। एक अखली दलील दूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर अल्लाह तबारक तआला हमें औलाद की नेमत से नवाजता है, अगर अल्लाह तबारक औलाद की शक्ल में बेटा हो या बेटी हो, किसी भी कुछ नवाजता है, किसी को बेटा नवाजता है, किसी को बेटी नवाजता है, अगर वो बेटा भी हो, काला हो या गोरा हो, नपटा हो या चपटा हो, फरमाबरदार हो या नाफरमान हो, ये पता नहीं चलता, लेकिन पैदा होने के बाद वो जैसा भी हो उसकी हम खुशी मनाते हैं, उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, उसके नाम रिखाई के कार्ड छपवाते हैं, उसकी सालगिरह मनाते हैं, हजारों रुपया खैरात करते हैं, खर्चा करते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कुरान याद नहीं आता, उस वक्त हमें हदीस याद नहीं आती। इसी तरह मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमें अगर कोई नौकरी मिलती है, अगर हमारी शादी होती है, हम नया घर तामीर करते हैं, तो हम नया घर तामीर करने के बाद घर में बाद में जाते हैं, घर बरावनी बड़े शौक से करते हैं, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। शादी जब होती है, शादी खानों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। नौकरी मिलती है, खुशी में हम दावत करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी सारी खुशियां हमको अजीज हैं। कुरान हदीस जब याद नहीं आती, याद आता है कुरान और हदीस, तो सिर्फ ईद मीलाद मुस्तफ़ा पे याद आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्द रसूल है, मीलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से कीना कपट है। वरना आपको अपनी सारी खुशियां जायज नजर आती हैं, कुरान हदीस की दलील ढूंढनी उस वक्त जरूरत महसूस नहीं होती आपको, लेकिन मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाते वक्त कुरान हदीस याद आता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले रबीउल अव्वल के महीने में आशिकान रसूल जो खुशियां मनाते हैं, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे करते हैं। जलसों में होता क्या है, आप देखो, ठंडे दिल से सोचो कि सुन्नी क्या गलत काम करते हैं मीलाद मुस्तफ़ा में। सबसे पहले जलसे करते हैं। जलसों में क्या किया जाता है, उलमाए कराम आते हैं, अपने खिताबात के जरिए उम्मत मुस्लिमा के दिलों में अजमत रसूल, मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल को उजागर करते हैं और उम्मत मुस्लिमा का सीने को इश्क रसूल का मदीना बना देते हैं। और उम्मत उनके बयानात को सुनकर अजमत रसूल में, मोहब्बत रसूल में, ताज़ीम रसूल में डूब कर इताअत रसूल की जानिब गामजन होती है। तो ये कौन सा गलत काम है। इसके अलावा नाते रसूल पढ़ी जाती है। नाते रसूल पढ़ना भी इन वहाबियों के नजदीक शिर्क है, क्योंकि मैंने बताया था ना, मुनाफिक हुजूर की ताज़ीम की कोई चीज बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इनके मजहब में ताज़ीम आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी इनकी जबानों से नाते रसूल का एक शेर नहीं सुनेंगे आप। 2-2 दिन का इज्तिमा होगा, एक नात नहीं पढ़ी जाएगी। अपनी जमातों की शान में तराने पढ़े जाएंगे, खसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन सरकार की तारीफ को ये शिर्क करार देते हैं। इसीलिए
आला हजरत फरमाते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। सरकार की तारीफ करना तो हम सुन्नियों की किस्मत में है। इसी तरह लोग ये भी सवाल करते हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहाँ लिखा है। अरे दलाइल तो बहुत है, एक आसान जवाब देता हूं। अगर कोई तुमसे सवाल करे कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहाँ लिखा है, तो सुन्नियों कह दो कि मीलादुन नबी की खुशी मनाना सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। कुरान हदीस के तो दलाइल है, लेकिन सबसे पहले सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब एक बात करो, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे को ये लोग नाजायज कहते हैं, लेकिन दूसरी जगह जो मुनकरीन मीलाद मुस्तफ़ा है वो सीरतुन नबी का जलसा करते हैं, दस्तारबंदी का जलसा करते हैं, खत्म बुखारी का जलसा करते हैं, मदरसे के सालाना जलसे करते हैं और 2-2, 3-3 रोज के इज्तिमात करते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है मैं बताऊं आपको। मीलाद मुस्तफ़ा के जलसे में भी स्टेज लगाया जाता है, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, शामियाना लगाया जाता है, फर्श का इंतजाम किया जाता है, लाउड स्पीकर का इंतजाम किया जाता है, यानी साउंड सिस्टम का इंतजाम किया जाता है, अखबारात में न्यूज दी जाती है, पोस्टर छपवा कर लोगों को इत्तला दी जाती है। मीलाद मुस्तफ़ा के जलसे में ये और सीरत मुस्तफ़ा के जलसे में, सीरतुन नबी के जलसे में, खत्म बुखारी के जलसे में, दस्तारबंदी के जलसे में, मदरसे के सालाना जलसे में, 2-2, 3-3 रोज के जो इनके इज्तिमात होते हैं, जो मुनकरीन मीलाद है उनके जलसों में भी स्टेज लगाया जाता है, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, फर्श का इंतजाम किया जाता है, लाइटिंग का इंतजाम किया जाता है, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, अखबारात में इत्तला दी जाती है, पोस्टर छपवाए जाते हैं। सारे काम इधर भी हैं और सारे काम उधर भी हैं। मीलाद मुस्तफ़ा के जलसों में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सीरतुन नबी के जलसों में, सीरत सहाबा के जलसों में, खत्म बुखारी के जलसों में, दस्तारबंदी के जलसों में, ये सब इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर मीलाद मुस्तफ़ा का जलसा नाजायज और सीरतुन नबी का जलसा जायज कैसे हो गया? किस पैमाने से मीलाद के जलसे को नाजायज कहते हो? शर्म करो। क्या सिर्फ जलसे के नाम के आगे मीलाद आ गया, इतना बुग़्ज़ है तुमको? मीलादुन नबी का जलसा जैसे ही नाम आ गया ये जलसा नाजायज हो गया और सीरतुन नबी का जलसा जायज। तो पता चला तुम्हारे सीनों में बुग़्ज़ रसूल, हसद रसूल है, दूसरी कोई बात नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इनके बुग़्ज़ रसूल, इनके हसद को देखकर कि जिसके सदक़े में कायनात अल्लाह ने बनाई, जिनके आने से हमें ईमान मिला, जिनके आने से हमें कुरान मिला, सारी नेमतें जिसके सदक़े में मिली, उस दिन उनकी आमद की खुशी मनाने को शिर्क बिदत हराम कह के उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आला हजरत इनके गुस्ताखे रसूल, हसद रसूल, बुग़्ज़ रसूल के जज्बे को देखकर कहते हैं और तो मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर अल्लाह के रसूल ना आते तो क्या नमाज होती, क्या रोजा होता, क्या कुरान होता? तुम जिस कुरान और सुन्नत की दावत का तुम इजहार करते हो, अल्लाह के रसूल आए तो ईमान मिला, कुरान मिला। सबसे पहले इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले दिलों में मोहब्बत रसूल जरूरी है, अजमत रसूल जरूरी है। अजमत रसूल, मोहब्बत रसूल के साथ जो भी अमल करो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। लिहाजा इससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा कि अगर कोई गुस्ताखे रसूल है, बद मजहब है, बद अकीदा है, अल्लाह तबारक व तआला उसका न फर्ज कबूल करता है न नफिल कबूल करता है। अपनी बात नहीं, साबिका वीडियो में मैंने हदीस का हवाला दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने से पहले मैं आप तमाम नाज़रीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ इस्लामी मालूमात पहुँच रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, क्योंकि इस दौर की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपके वीडियो को शेयर करने से किसी एक का ईमान अकीदा महफूज होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको पहुँचाएगा। लिहाजा आइंदा भी मेरी वीडियो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली है, उसको ठंडे दिल से सुने और गैर जानिबदारी से फैसला करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक हमें अहले सुन्नत के अक़ायद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जश्न रसूल मनाने की तौफीक अता फरमाए और खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।